Hello everyone, this side Rishabh Pandey, and in this video, I'm going to present the slides on the topic the prevalence of the drug abuse in Bihar. Drug abuse is a serious problem and it is increasing at an alarming rate. So, in order to eradicate this practice of this drug abuse, Ministry of Social Justice and Empowerment has started a campaign named as Nashamukht Bharat Abhiyan in 272 districts of India. uh, the prevalence of under this topic we are going to see different subunits, that what are the drug, what are the serious ill effects of the drugs, what are the different types of the drugs which is consumed by the people of Bihar, and the report of the timeline of the rampant increase of the drugs in Bihar, what are the statistics of the different consumptions of drugs and everything. Okay, now let's start this presentation. पहला बात होता है ड्रग क्या होता है। पहले हम लोग को ये देखना है व्हाट इज़ अ ड्रग। ठीक है, इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए कि एनीथिंग एनी सब्सटेंस विच अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल एंड द साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ योर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रग। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ वो होता है द एक्टिविटीज़ विच इज़ गेटिंग परफॉर्म बाय योर बॉडी एक्सेप्ट योर ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। एंड द एक्टिविटीज़ विच इज़ गेटिंग परफॉर्म बाय योर brain, that is actually called as the psychological activity. So if a person takes a drug, then that drug is going to damage both the activities, both the physiological activities and the psychological activities. Okay, so now let's proceed further. What is the classifications of the drugs? देखो, जनरली ड्रग्स का क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। एक होता है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होता है और एक होता है रिक्रिएशनल ड्रग्स होता है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वो होता है जो कि मेनली हमें जिससे हम जो कि अगर हम बीमार हो, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़, देन यू गो टू द डॉक्टर एंड द डॉक्टर गिव्स यू ओनली द फार्मास्यूटिकल ड्रग्स सच एज द एस्प्रिन हो गया, पैरासिटामोल हो गया, ब्रोफिन हो गया, विटामिन के टैबलेट्स हो गया, ऑल दीज आर एक्चुअली द फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। अटोरवास्टैटिन हो गया, ऑल दीज आर एक्चुअली द फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। रिक्रिएशनल ड्रग्स क्या होता है? रिक्रिएशनल ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच जनरली पर्पस गेट्स एडिक्टेड टू दैट एंड द पर्सन स्टार्ट्स टू अब्यूज दैट दोज ड्रग्स, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द रिक्रिएशनल ड्रग्स। एग्जाम्पल हो गया अल्कोहल हो गया, निकोटिन हो गया, ओपियोइड्स हो गया, ओपिएट्स हो गया, हीरोइन हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया, कैफीन हो गया, ये सब आपका रिक्रिएशनल ड्रग्स होता है। आगे के स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे वो सब ड्रग्स क्या होता है अच्छी तरीके से। पहले हम लोग देख लेते हैं ड्रग अब्यूज़ क्या है। व्हाट इज़ अ ड्रग अब्यूज़? सी, इफ़ अ पर्सन गेट्स एडिक्टेड टू अ ड्रग, then he or she is going to use the drug continuously. That is actually called as a drug abuse. Okay, in simple language, if I want to explain you all that, suppose there is a labor and he came home from the construction site. Okay, and he is very lethargic. So and he knows that tomorrow morning he again has to go to the construction site, and he is very lethargic. If he won't be able to go, and when he will take the drug, he will start to feel a lots and lots of excitation. He will forget about that pain. So that is the main use of the drug. The drug is going to give relief to that labor. Okay, but he don't know what are the serious lethargic, what are the serious problems of that drug, what are the serious consequences of the drug. And when that labor gets addicted to drugs, whatever the drug he or she is consuming, that is called as the drug abuse. So a drug abuse or a substance abuse refers to the use of certain chemicals for the purpose of creating a pleasurable effects on the brain. So there are over 190 million of the drug users around the world, and the problem has been increasing at an alarming rates, especially among the young adults under the age of 30. Drug abuse is the non-permissive consumption of the certain substance that may lead to the physical and the psychological dependence. मैंने आपको पहले ही बताया था drug mainly affects your physiological and the psychological activities of your body. ये वही चीज़ है। ड्रग कंजप्शन इन बिहार, जैसे कि हमें पता है कि बिहार में लीकर बैंड है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली बैंड दिस 3 or 4 years before. See here, the date is given on the 1st April 2016, but it was not actually on that date. It was actually banned a very long years ago, around in 1975. One of its chief minister banned that drug, banned the usage of the alcohol in Bihar. But in 1979, its few leaders of the Bihar and the chief minister at that time lifted up the ban in wake of the corruption. From that time, the alcohol was consumed by the people of Bihar till 2016, and again at 2016, its current prime minister banned the use of the alcohol. However, the unavailability of the alcohol is just a matter of formality, बट इट्स एबिलिटी इज़ विजिबल इन एवरी कॉर्नर ऑफ द स्टेट। इसका मतलब यही है कि अभी भी लीकर बैंड है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कोई अभी भी कोई लीकर वहाँ पे ले नहीं रहा है। आसानी से वहाँ पे लीकर मिल जाता है सभी को। दैट मीन्स दैट मीन्स पीपल आर सो मच एडिक्टेड दैट दे कैन मैनेज द दीज ड्रग्स फ्रॉम एनी वेयर।
इसका बहुत सीरियस प्रॉब्लम हुआ था जैसे ही वहाँ पे लीकर बैन हुआ था 2016 ऑन 1 अप्रैल 2016। इसका मेन प्रॉब्लम ये हुआ था कि लीकर तो बैन हो गया था उसके बाद, तो बहुत सारे जो ड्रग एडिक्ट्स थे वो लोग को लीकर नहीं मिल रहा था, तो वो लोग क्या किए, वो लोग स्विच कर गए फ्रॉम लीकर टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ड्रग्स। वो लोग गांजा लेने लग गए, वो लोग मारिजुआना लेने लग गए, वो लोग कोकेन लेने लग गए, हीरोइन लेने लग गए, ये सब लेने लग गए। तो इसका यही मेन प्रॉब्लम था कि आफ्टर द राइज इन इनटेक ऑफ द नार्कोटिक्स ड्रग ऑल ऑफ अ सडन इन बिहार पॉप्ड अप अ troublesome sign. The upsurge in the usage of the addictive drugs was since 2015, and after the liquor ban, the liquor underwent in intoxicant substitution replacement by other narcotics drugs. Report of the government agencies, which came as a big setback for the Bihar government, indicated that there was a steep rise in the use of the psychotropic substance and the drugs such as the ganja, bhang, opium, cough syrups, etc. आई हैव जनरली इंक्लूडेड द कर्व सिरप हेयर, दैट मीन्स वहाँ पे जब लीकर बैंड हो गया था और कर्व सिरप में वी एवरी वन नोज दैट इन कर्व सिरप देर इज अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ द इथाइल अल्कोहल इज एडेड ऑन इट सो दैट इट विल गिव रिलीफ टू योर बॉडी व्हेन you go to the sleep. So that small quantity of ethyl alcohol acts as a drug. So people start to take 5 to 6 bottles of the curb syrups in a single day. Can you just imagine 5 to 6 bottles of the curb syrup in a single day, so that it can act as a drug for them. These are the commonly abused drugs in Bihar. गांजा हो गया, कोकेन है, हीरोइन है, अल्कोहल हो गया, ओपियम हो गया, चरस हो गया, हरीश हो गया. These are the actually the commonly abused drugs in Bihar. Okay. See, first, हम I'm going to explain the serious ill effects of all these drugs. Okay, so that it will be beneficial for the upcoming slides. ये जो गांजा है यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैनबिस. एक्चुअली कैनबिस इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट and there are different varieties of the substances which can be extracted from the cannabis plant only. See, actually a cannabis is a plant, and from that plant, if if you are if you are taking the leaves, okay, from that leaves you can obtain bhang. उस लीफ से भांग बनाया जा सकता है. जो कैनबिस प्लांट होता है उसका लीफ है, उससे उससे भांग बनाया जा सकता है. अगर वही कैनबिस प्लांट है, उसके फ्लावर्स रहें, and that to be the female flowers, that female flowers is going to produce a ganja. Okay, दो चीज़ बन गया. ये जो कैनबिस सटाइवा का जो प्लांट होता है, इसका अगर लीव से आपको भांग मिल सकता है, उसका अगर फीमेल फ्लावर रहे तो उससे आपको गांजा मिल सकता है. ठीक है, इसी कैनबिस सटाइवा के प्लांट से चरस भी मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज द हरीश. ओके ओके, और वो एक बहुत खतरनाक सा चीज़ होता है जो चरस होता है, दैट इज कॉल्ड एज द हरीश. इट इज़ अ CNS स्टिमुलेंट. ओके, दैट मीन्स इट इज़ अ मोस्ट पोटेंट थिंग. इट्स अ मोस्ट पोटेंट थिंग. आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो एक बहुत खतरनाक स्टिमुलेंट होता है. वो इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस अ लॉट्स ऑफ एक्साइटेशन टू योर बॉडी, एंड इट्स गोइंग टू make you relief from any kind of pain. Okay, so for and the drug addicts, what happens to the drug addicts, they think that this is the most potent thing. They get relief easily when they take this. Even in just after taking the drug, they get relief even after 4 to 5 minutes. That means it's the most potent thing. Okay, its fatal dose is around 2 gram. अगर 2 ग्राम अगर आप कैनबिस ले रहे हैं पर kg, that means if a person is of around 50 kg and takes around 2 gram per kg, that means if it takes around 100 gram of cannabis, he is going to probably die. Okay, and there is one more important thing of whatever the drugs which I have talked about right now, that the bhang, harish, ganja, which is obtained from this cannabis sativa or the cannabis indica plant, that there is this run amok condition. That means if a person takes large amount of all these drugs, he or she may get acquitted to the run amok condition. That means it will lead to lots and lots of excitation, and he or she may run away from the house and may commit suicide. That is called as the run amok condition. Okay, this is actually an motivational syndrome. It's very common to all those people who takes lots and lots of ganja, bhang, charas. Okay, which crosses the fatal dose. Those person which crosses the fatal dose of these drugs, they may they may uh, they may get into the run amok condition. Okay, and जो भी
जिस जिस चीज़ के बारे में मैंने अभी बात किया है, जैसे भांग हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, ऑल दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द मारिजुआना. मारिजुआना इज़ द हिंदी नेम ऑफ द कैनबिस. ओके. सो इसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि मैंने भी बताया अमोटिवेशनल सिंड्रोम हो गया, रन अमॉक कंडीशन के बारे जैसे मैंने बताया. उसी तरीक़े से अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा ये सब ड्रग्स ले रहा है तो इट्स गोइंग टू अफेक्ट देयर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट्स गोइंग टू डिक्रीज द इम्यूनिटी पावर ऑल्सो. ओके. और ये जो कैनबिस प्लांट है इसका बहुत सारा बाय प्रोडक्ट भी, जैसे सॉरी ये जो गांजा है इसका बहुत सारा बाय प्रोडक्ट भी रहता है, जैसे कि हो गया जॉइंट हो गया, वीड हो गया, रीफर हो गया. बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ द सिगरेट्स. अ पर्सन, अगर कोई आदमी सिगरेट ले रहा है तो वही या तो वो वीड ले रहा हो, या तो वो जॉइंट ले रहा हो, या तो वही रेफर ले रहा होगा, रीफर ले रहा होगा. और इसकी बहुत सारे भी सीरियस इल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वो कैंसर, ऑल दीज आर द कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस. इट विल लीड अप टू द कैंसर. उससे माउथ कैंसर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकता है. जो कोकेन है, ये कोकेन जो होता है वो होता है कि वो लीव से, मतलब वो कोका प्लांट का लीव से डिराइव होता है. सिमिलरली जैसा कि कैनबिस प्लांट के लीव से हमें भांग मिला था, वैसे ही कोका प्लांट के लीव से हमें कोकेन मिलता है. कोका प्लांट एक्चुअली होता है एक तरह का प्लांट होता है, ये भी कैनबिस ही प्लांट की तरह होता है. ये अजिथ्रोजाइलम कोका प्लांट होता है एक्चुअली ये. सो अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा कोकेन ले रहा हो, सो इट विल लीड अप टू द ब्लैक टीथ. उसका ब्लैक टीथ, मतलब कोई ज़्यादा कोकेन ले रहा हो तो उसका ब्लैक टीथ हो जाता है, मतलब जो दांत होता है वो काला हो जाता है. एंड इट विल लीड अप टू द ब्लैक टंग ऑल्सो, मतलब उसका जीभ भी काला हो जाता है. एक तरह का फ्रूट टाइप का दिखता है कोकेन, विच इज़ ऑल्सो विच इज़ डिराइव फ्रॉम द कोका प्लांट ओनली. हीरोइन, इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग ये देख लेते हैं. अल्कोहल तो बहुत कॉमन सा चीज़ है, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होता है, अगर उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई उसको यूज़ कर रहा है तो उसे एक तरह का ड्रग अब्यूज़ कहलाता है. इनहेलेंट और सॉल्वेंट. इनहेलेंट कोई जो अगर कोई सूंघ के जैसे ले रहा है, जैसे कि ये कोकेन के बारे में बात की है, तो कोकेन कोकेन को ज़्यादातर सब कोई सूंघ के लेता है. दैट मीन्स स्नॉटिंग के तरीके से लेता है. इफ़ अ पर्सन is taking cocaine by the method of snorting, he or she may suffer from the gangrene of the nose. Gangrene of the nose ऐसा होता है कि अगर वो taking if a person is taking cocaine from snorting method, then he or she will be suffer from the gangrene of the nose, मतलब उसका नाक खराब हो जाता है. This is one of the major consequences of the use of the cocaine drug. उसी को इनहेलेंट के मैंने इनहेलेंट लिखा है उसी के लिए वहाँ पे. और सॉल्वेंट्स, जैसे कि अगर कोई इंजेक्शन ले रहा हो, उसमें अगर ड्रग सॉल्यूबल है और उसे इंजेक्शन के तौर पे ले रहा हो, तो डैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट की तरह ले रहा है. ओपियम भी एक तरह का ड्रग ही होता है, जो कि डिफरेंट है ये गांजा कोकेन की तरह से. ओपियम जो होता है वो जैसे किसी प्लांट के लीफ से नहीं मिलता है, वो एक एक्चुअली प्लांट ही रहता है. ओपियम एक तरह का प्लांट ही होता है, वो होता है पैपाविर सोपनीफरम प्लांट होता है, ठीक है. और जो ओपियम रहता है उसी पैपाविर सोपनीफरम प्लांट के जो अनराइप फ्रूट्स रहते हैं, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज द पॉपी फ्रूट्स. एंड फ्रॉम दैट अनराइप फ्रूट्स, दैट इज़ पॉपी फ्रूट्स, द एक्सट्रैक्टेड थिंग इज कॉल्ड एज द ओपियम. उसे हम लोग खसखस भी बोलते हैं. पॉपी फ्रूट से जो निकलता है खसखस, उसी को बोलते हैं ओपियम. दैट इज एक्चुअली ओपियम. एंड इट्स फेटल डोज इज अराउंड 2 ग्राम पर kg. ओके. इफ़ अ पर्सन इज ऑफ अराउंड 50 kg, तो अगर मान लीजिए अगर वो 100 ग्राम ऑफ ओपियम ले लिया, दैन ही और शी मे डाई. एंड द ड्रग obtained फ्रॉम दिस ओपियम इज कॉल्ड एज द ओपिएट्स. ओपिएट्स एग्जाम्पल ऑफ द ओपिएट्स आर द मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, टेबिन हो गया. दीज आर एक्चुअली द ओपिएट. दीज आर एक्चुअली ऑल द टाइप्स ऑफ द ड्रग्स. सो इफ़ अ पर्सन टेक्स ऑल दिस ड्रग्स, ही और शी मे सफ़र फ्रॉम द कैंसर हो सकता है. वो कोमा में जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रहा हो, ये भी हो सकता है, ठीक है. और नाउ कम्स टू हीरोइन. एक तरह का ओपियोइड्स होता है. मैंने ओपिएट्स बता दिया, और ये ओपियोइड्स एक अलग चीज़ होता है. दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड द हीरोइन. इट इज़ एक्चुअली द सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ द मॉर्फिन. दैट मीन्स डाईथाइल मॉर्फिन. इट इज़ एक्चुअली डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है ये, कि मतलब 2 एसिटाइल ग्रुप और एक मॉर्फिन, इट विल रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ द ओपियोइड्स, ठीक है. और इसका भी बहुत सारा अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स बनता है, जैसे जंक हो गया, डोप हो गया, स्मैक हो गया, ब्राउन शुगर हो गया. ब्राउन शुगर इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, जैसे कि बहुत कोई आदमी लोग ब्राउन शुगर ले रहा है. दैट इज़ एक्चुअली नथिंग बट अ हीरोइन. इससे भी ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि
अगर कुछ ज़्यादा कोई आदमी ओपियोइड्स ले रहा है तो उसका भी टीथ ब्लैक कलर का हो सकता है, टंग ब्राउन कलर, टंग भी ब्लैक कलर का हो सकता है. दीज आर द सेवरल प्रॉब्लम्स, दीज आर द सेवरल कंसिक्वेंसेज ऑफ टेकिंग ओपियोइड्स. और जो ओपीएम का जो सीरियस एक मेन प्रॉब्लम मैं बताना भूल गया था, इसके ये पिन पॉइंट प्यूपिल की तरह, पिन पॉइंट प्यूपिल का प्रॉब्लम करता है कि अगर इफ़ अ पर्सन इज टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द ओपीएम, ओके, इट विल रिजल्ट इन टू द पिन पॉइंट प्यूपिल. दैट मीन्स उसका प्यूपिल, आँख का प्यूपिल बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है. ठीक है, ऐसा होता है. Now let's proceed further. See the timeline of the reports of the rampant increase of the drugs use in Bihar. Okay, see जब 2016 के बाद से तो ड्रग बंद हो गया था, वो अल्कोहल यूज़ होना बंद हो गया था. सो द पीपल स्विच फ्रॉम द अल्कोहल टू द ड्रग्स. So I'm just seeing from the 2015 only. Okay, I'm just going through all this. In 2015, the Ministry of Social Justice and Empowerment in the Parliament tabled the statistics on the sale of the psychotropic drugs in the state of Bihar. It witnessed a seizure of ganja 14.37 kg, heroin 1.12 kg, opium 1.97 kg, while it was almost negligible for the hashish and the poppy husk straw in 2015. मतलब कि 2015 में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक स्टैटिस्टिक्स दिखाया था, मतलब स्टैटिस्टिक्स दिखाया था कि हमें गांजा मिला था 14.37 kg, जो कि मिला था बिहार से, जो कि बेचा गया था. ठीक है, 1.12 kg अराउंड, हीरोइन अबाउट 1.12 kg बेचा गया था, ओपीएम 1.97 kg बेचा गया था. एंड हशीश, जो कि मैंने पहले ही बता दिया क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कैनबिस प्लांट, वो भी बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी में बेचा गया था. बट देर इज़ अ स्टीप इंक्रीज when you will go in 2016. Okay, the report from the Directorate of the Revenue Intelligence surfaced in a public domain, which said there was a survey to collect inputs of smuggling of the psychotropic substances in various parts of Bihar, such as the Purnia, Kishanganj, and the East Champaran. The inputs revealed that the liquor addicts are now switching over to the narcotics drugs such as the ganja, heroin, cough syrups, hashish to satisfy their addicts. In at least 10 days or so, Bihar witnessed almost 25% increase in the sales of these substances. So it is self-explanatory. That means when the liquor was banned, the people start to switch from the alcohol to the drugs. In 2017, a news channel investigation found a huge new black market of the smuggled alcohol and an alarming spike in the psychotropic substance used in the dry state. In 2018, it was found that 22.5% of the population consumes alcohol. Can you just imagine 22.5% of the population they use alcohol in spite of the ban? मतलब कि बैन होने के बावजूद भी वो अल्कोहल यूज़ करते थे. 2.8% takes ganja and 2.8% consumes opioid. Opioids, as I have already told, opioids are nothing but heroin. In 2019, a report from the Ministry of Social Justice and Empowerment stated that for every one woman who consumes alcohol in Bihar, there are actually 17 alcohol using men. हर एक वुमेन अगर अल्कोहल ले रहा है, अल्कोहल ले रही है, तो 17 मेल पर्सन्स अल्कोहल कंज्यूम करता था, विच इज़ क्वाइट एन अलार्मिंग डेटा. 5.2% of the population consumes alcohol to get relief from the pain and 2.7% are dependent users. दैट मीन्स 5.2% जो पॉपुलेशन था बिहार का, वो अल्कोहल इसलिए लेता था ताकि वो अपना पेन से रिलीफ कर सकें. हालांकि लेकिन 2.7% ऑफ द डिपेंडेंट यूजर्स भी अल्कोहल लेते थे, जिससे कोई पेन रिलीफ नहीं रहता था, और किसी पेन से छुटकारा पाने के लिए नहीं लेते थे. दैट मीन्स डिपेंडेंट यूजर्स, दैट मीन्स दे हु लाइड बिलो द एज ऑफ द 18 years. Now in 2020, after the ease of the COVID-19 lockdown, there is a rampant and a steep increase in the consumption of the drugs in Bihar. Now see what are the effects of the drug abuse. See, the drug abuse can lead up to the following things. See, the first is the loss of the coordination. If a person is taking lots and lots of the drug, he or she will not be able to coordinate properly. His mind will not be able to work properly. That means I already told you in the told in the at the starting of this presentation that drug basically affects the two things. One is the psychological activities and other is the physiological activities. Once it affects the psychological activities, your body is not able to coordinate properly. अगर आपको सीधा चलना है तो आप सीधा नहीं चलने पा रहे हैं. देर इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन योर बॉडी.
आप इधर उधर चल रहे हैं, डगमगा रहे हैं, दैट इज़ द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. पुअर जजमेंट, यू आर नॉट एबल टू जज प्रॉपरली, आप किसी चीज़ का सही गलत नहीं करने पा रहे हैं, दैट इज़ वेदर इट इज़ राइट और नॉट, your mind is not working properly. That is also a psychological activity, that it has damaged the psychological activity of your brain. Slowed reflexes जैसे कि your the reflex action the reflex action has totally get damaged. That means if a person has addicted to a drug, and if anyone is going to give him a slap, I'm just giving you an example, if a person slaps a drug addict person, he or she will not be able to feel a pain on their body because it's slow reflex action. वो लोग पता नहीं चलना पाएगा कि कोई मेरे को मारा, कोई ड्रग एडिक्ट है, अगर उसको अगर हाथ पैर में कुछ बांध करके उसे मारे भी तो उसे पता भी नहीं चलने पाएगा कि कोई उसे मार भी रहा है, बिकॉज ऑफ द स्लो रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द बॉडी. हिज माइंड इज नॉट वर्किंग because of the damage of its because of the effect of the damage of its psychological activities. Okay. डिस्टॉर्टेड विजन, ही इज़ नॉट एबल टू सी प्रॉपरली, इसका विजन पूरा ख़राब हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, ब्लैकआउट हो सकता है. ब्लैकआउट इज द टाइप ऑफ द कंडीशन वेर यू कैन नॉट सी एनीथिंग, नॉट इवन अ सिंगल थिंग, द होल थिंग अराउंड यू विल बी ब्लैक. सो दैट इज कॉल्ड द ब्लैकआउट. So now let's conclude this presentation. Drug abuse is a complex problem thought to result from a combination of the psychological and the environmental factors. ठीक है. Infants of abusers may suffer from the neglect or the effects of the parental drug use. मतलब कि अगर कोई अब्यूज़र है, ड्रग अब्यूज़र, और कोई फीमेल है और उसके पेट में कोई इन्फेंट है, तो ही और शी may get affected by the drug. As they grow into the childhood, they may demonstrate antisocial behavior. अगर कोई बच्चा ड्रग्स ले रहा है तो ही और सी may suffer from the antisocial behavior. That means he is not going to behave properly. उसका मैनर सही नहीं रहेगा, वो एकदम मैनरलेस टाइप का रहेगा. द साइंस एंड ही और शी विल शो द साइंस ऑफ द मैल न्यूट्रिशन. वो क्वाशियोरकर हो सकता है, उसे मेरास्मस हो सकता है, उसे बहुत सारा डिजीज उसे अटैक कर सकता है. ही और शी विल शो द साइन ऑफ द मैल न्यूट्रिशन. पुअर सेल्फ स्टीम हो सकता है, मतलब कि पुअर सेल्फ स्टीम मतलब कि वो अपनी तरफ से उसको ही घृणा लगेगा कि दैट ही इज़ अ ड्रग एडिक्ट, ही और सी इज़ अ ड्रग एडिक्ट. ही विल नॉट बी एबल टू सी हिमसेल्फ एज अ गुड पर्सन. ओके, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज द पुअर सेल्फ स्टीम. डिप्रेशन, वो हमेशा डिप्रेशन में रहेगा. और अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, ही और शी विल नॉट बी अटेंटिव एवरी टाइम. So these are actually the causes of the drug addicts. These are actually the causes of the drugs. Identification of the drug abuse is a difficult first step on the road to recovery because of the methods of many abusers used to hide their addiction. हाँ, ये देखिए, जैसे कि अगर कोई आदमी बता ही नहीं रहा है कि वो ड्रग एडिक्ट है, तो फिर उसका रिकवरी नहीं हो सकता है. तो फॉर द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिकवरी, इट इज़ crucial to find whether the person is a drug addict or not. Once it is found that the person is drug addict, he or she may send to the de-addiction camp, and there its proper treatment can be processed further. So the inability of the family members to recognize or accept the problem, and the relatives enabling the behavior. Okay, so this was all about the presentation. Hope you liked all these things, and these are the references through which I have seen all these informations. I have taken all these informations, and you can follow the Nasha Mukt Bharat Abhiyan, which is led by the Ministry of Social Justice and Empowerment, on the following 3 platforms, mainly on Instagram, Twitter, and Facebook. Thank you. Thanks a lot.